हाँ अब मुझे बटरिंग रेड। Good evening, everyone. Am I clearly audible? Yes, ma'am. I would also would want to know that how many of you joined with parents or your parents are also attending the session? Because I meant to have the session to give you, a brief info on all the upcoming exams related to management. So would have been good if your parents were also part of this discussion. Okay, let's get started. Okay, just still I want to know if I can get responses in the chat window, or you can unmute yourself and speak. That how many parents are here as a part of discussion, because then probably I'll go in detail to explain the things. Yeah, myself, Shweta Agrawal. Yeah, ma'am. Good evening. Good evening. Anyone else on the from the parents? किसी और कोई अपने parents के साथ attend कर रहे हैं इसको? Because we have said कि possible parents के साथ attend करें तो अच्छा है. Good evening, ma'am. Pushkar's mother here. Okay, ma'am. Good evening. Okay. There's somebody named iPhone. Can somebody tell me who's the person in the chat box? या आप rename कर लें या आप अपना actual नाम मुझे chat में भेज दें so that I'll be renaming you. It becomes easier to engage in a conversation if I know your name. Okay, I've got the response here. Okay, fine. Okay. So what I'm doing here, since मैंने जितने maximum possible exams हो सकते हैं इनका info यहाँ पे रखा हुआ है. काफियों की अभी dates नहीं आई हैं, only कुछ few की announced है. So एक बार आप पूरा session देख लें, बीच में जो आपकी query arise होती है आप उनको note down करके रख लें, and towards the end we can tackle those question and answer. Okay, I hope that's okay with everyone. Yes. Okay, fine. Let's get started. And काफी चीजें हो सकता है यहाँ पे reiteration लगे कि काफी चीजें आपको पहले से पता होंगी, कुछ को नहीं पता होंगी. तो for the benefit of larger good, I am giving details of all possible exams with the cutoffs and whatever information I have at my hand. ठीक है? तो कुछ लोग के लिए repetition हो सकता है, but just be patient and ठीक है. So let's get started. So what are we going to do? We are going to understand the exam patterns. जहाँ updates है हमारे पास, as in जहाँ पे हमारे पास dates हैं जो आ चुकी हैं, उनके बारे में information I'll share up here. ठीक है? So we know our most important exam happens to be IPMAT Indore. So far, only the date has been announced that it is on 12th May, and registration is yet to be started. Those who are studying, I'm sure they are very well versed with the pattern. Okay, so उनको pattern का कोई issue नहीं होगा. Number of seats 150 है. Sectional time limit है. Sectional cutoff है. Overall cutoff clear करने से यहाँ पे benefit नहीं होता. आपको individually तीनों section का cutoff clear करना ही होता है. Final selection depend करता है. IPMAT score को 65% weightage देते हैं. PI को 35% weightage देते हैं. दो 10th and 12th में it's good to have more than 60%, but वो actually उसको final selection process का part नहीं बना रहे, वहां पे कोई weightage assign नहीं कर रहे हैं. IPMAT Indore becomes all the more crucial because इस exam का score जो है वो ये सारे institutes भी इनका कोई अलग exam नहीं है, IPMAT Indore का ही score consider करते हैं, which is IIM Ranchi, IFT Kakinada,
Nalsar, Nirma, and Tapni, they do not have their separate exams. They all are going to consider IP MAT Indore ka score. Now here again, some of them will look into the sectional like Ranchi, okay, and some of them will only look at the overall sectional cut section. Overall आपने कितना स्कोर किया है IP MAT इंदौर में. So if at all कभी ऐसा हुआ कि आपका IP MAT इंदौर का ओवरऑल स्कोर अच्छा है, 175 180 है, बट किसी कारण से एक आध सेक्शन नहीं निकला, बट स्टिल दैट इज अ स्कोर जिसके बेसिस पे आपको नालसा, निर्मा एंड तापनी से कॉल एक्सपेक्टेड है. ठीक है. सो दैट्स व्हाई दिस एग्जाम बिकम्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट. दिस डिजर्व्स ऑल द सिंसियरिटी दैट इफ मेरा हायर मैथ्स अभी मुझे चैलेंजिंग लग रहा है, पहली बात तो देयर आर फ्यू वेरी स्पेसिफिक चैप्टर्स दैट वन नीड टू टेक केयर ऑफ. तो स्पेसिफिक होके जाइए. लास्ट एनालिसिस ध्यान से देखिए. लॉट ऑफ अस बिलीव कि कैलकुलस इंपॉर्टेंट है, बट कैलकुलस पेपर में नहीं है. ठीक है. एंड हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हमें एग्जाम में कितना मैक्सिमम स्कोर, मतलब 180 इज बेयर मिनिमम वी नीड टू लुक एट टचिंग हियर. देन यू आर अवेयर अबाउट द कट ऑफ. इफ नॉट देन 2024 की जो कट ऑफ है, ऐसे में 24 मार्क्स चाहिए थे. QA MCQ is 39 and VA is 113. Okay. So and those who are starting QA ऐसे के टोटल मार्क्स कितने हैं? Quickly do the maths. QA ऐसे के टोटल मार्क्स कितने हुए? There are 15 questions, 4 मार्क का. So 60 में से 24 चाहिए. यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चन है, 120 में से 39 चाहिए. और इंग्लिश में 180 में से 113 चाहिए. तो इंग्लिश इज द वन एरिया दैट इज गोइंग टू लिफ्ट अप योर स्कोर्स. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम इंग्लिश को थोड़ा सा नेग्लेक्ट करके चलते हैं कि हमारी इंग्लिश अच्छी है, हमारी वोकैब स्ट्रांग है, हमारा ग्रामर स्ट्रांग है. बट IP MAT इंदौर इज एन एग्जाम जहाँ पे आप मैथ्स में जस्ट कट ऑफ क्लियर करने के हिसाब से आपका पेपर दिया जाता है, क्योंकि इतने कम टाइम में क्वेश्चंस हो भी नहीं सकते पूरे. एंड इंग्लिश में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए एंड यू नीड अ लॉट ऑफ स्पीड कि आप 45 क्वेश्चंस में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कर पाए. एंड 120 अबव एटलीस्ट आपको टारगेट करना पड़ेगा इन इंग्लिश इन IP MAT इंदौर. नाउ आई एम रांची. It doesn't have its own exam, uses the IP MAT इंदौर का ही स्कोर यूज करते हैं. नंबर ऑफ सीट इज 60 एंड जो फर्स्ट 3 years की फी है वो अभी एज ऑन डेट अप्रोक्सीमेटली 5.4 lakhs पर ईयर है. एंड MBA में 4th ईयर एंड 5th ईयर में जाके नॉर्मल MBA प्रोग्राम का जो फी है वही लगेगा. अभी मतलब अभी तो IP MAT इंदौर का भी रजिस्ट्रेशन नहीं आया, मोरलेस आप मान के चल सकते हैं. इनकी एप्लीकेशन जो है मिड अप्रैल एंड मई फर्स्ट वीक अराउंड क्लोज होती है. इनका जो फाइनल सिलेक्शन है वो IP MAT इंदौर के स्कोर, रिटन एबिलिटी टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू पे बेस्ड है. IFT Kakinada, Indian Institute of Foreign Trade New Delhi is one of the most premier institute as far as foreign trade is concerned. In fact, इंडिया के टॉप 10 B schools में ये आता है. तो जो इनका IPM प्रोग्राम है वो दिल्ली पे ना बेस करके इन्होंने इनका जो ब्रांच काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पे इनका IPM प्रोग्राम रन होता है. So they have BBA in business analytics and then followed up by MBA in international business. Now, unlike Indore, they make it mandatory that you should have maths in class 12. यदि आपके पास maths नहीं है, then आप IFT के IPM प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकते, because it's business analytics. A lot of data, stats and maths is involved in this course. Number of seats are 60. Again, आपको IP MAT इंदौर में तो अपीयर होना ही है. सेपरेटली आपको IFT के लिए अप्लाई करना है. फाइनल सिलेक्शन आपके IP MAT स्कोर, एकेडमिक प्रोफाइल दे स्पेसिफिकली लुकिंग एट क्लास 10th का स्कोर एंड जेंडर डाइवर्सिटी, दैट मीन्स गर्ल्स को एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे व्हेन द फाइनल सिलेक्शन इज बीइंग क्रिएटेड. So this is the final tally. Entrance test को 78% weightage है. Gender diversity, if you're a male you're getting a 0, female को you're getting 2. Academic consistency that is class 10th का 20 pointers है. और ये उन्होंने बाइफिकेशन दे भी दिया है कि आपके 10th में कितने मार्क्स है तो आपको कितने मिलेंगे. एंड आपका 10th ऑलरेडी हो चुका है मोस्ट ऑफ यू, तो यू वुड नो
कि यहाँ से आपको कितने मिल रहे हैं, एंड आपको फिर एंट्रेंस टेस्ट पे कितना एम्फेसिस पुट करना है. Nalsa University of Law, that's the number 2 law school in India. They also have an IPM program. The total intake is 6650 from all over India, and then 60 is Telangana domicile. There is a 30% horizontal reservation for females. Again, you need to appear for IPMAT Indore, and or they have their own exam also, and इसको आपको separately apply करना ही पड़ेगा. एंट्रेंस एग्जाम को 75% वेटेज है, विच कुड बी आईपीएमएट इंदौर और देयर एनएमईटी एनएमईटी, एंड पर्सनल इंटरव्यू का 25% वेटेज है. निर्मा यूनिवर्सिटी, इसका आईपीएम काफी प्रोग्राम काफी established है. देयर आर couple of students from Raipur itself who are doing IPM program from Nirma, and the feedback is really good. Again, number of intake is 240. All India seats are 156. फर्स्ट 3 years का फी 3.5 लाख, एंड देन एमबीए का कहीं पे भी आईपीएम प्रोग्राम में जो 4th and 5th ईयर है, जो उनका एमबीए प्रोग्राम है, उसकी प्रिवेलिंग फी एप्लीकेबल होती है कहीं पे भी. आईपीएमएट इंदौर का स्कोर कंसिडर करेंगे, यू नीड टू अप्लाई सेपरेटली टू निर्मा. दीज आर द फाइनल सिलेक्शन के on the basis of entrance exam. 50% weightage is to IPMAT Indore, 20% to your past academics, and 30% to the personal interview. TAPMI. Now, TAPMI has 2 programs. TAPMI has one program which is IPM, which is a 5-year program. Okay, this is being offered at the Manipal campus. Now, the way we know, जैसे हमें कोटा पता है, कोटा एक educational city है for the preparation point of view. Manipal is an educational city in Karnataka from the college point of view. So काफी well known, मतलब यहाँ पे colleges है बहुत सारे, ठीक है. एंड तापमी वहां का एमबीए कॉलेज है. तो आईपीएम प्रोग्राम जो है वो मणिपाल में ऑफर्ड है. जो बीबीए ऑनर्स है 4 years का, वो इनका बैंगलोर कैंपस में ऑफर किया जाता है. स्कोर ये काफी सारे कंसिडर करते हैं. आईपीमैट इंदौर का स्कोर लेते हैं, जिपमैट भी लेते हैं, जेई भी लेते हैं, क्लैट भी लेते हैं, सैट, और इनका खुद का एंट्रेंस टेस्ट. तो काफी मल्टीपल वे एंट्री है यहाँ पे कि आप काफी सारे स्कोर से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. देन फाइनल सिलेक्शन, ऑफ कोर्स आपका अकेडमिक प्रोफाइल 10th and 12th, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, दे आर कैटेगोरिकली मेंशनिंग दैट. एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर, पर्सनल इंटरव्यू, माइक्रो प्रेजेंटेशन इज नथिंग बट एक्सटेम्पोरे जैसा, ये क्राइस्ट में भी होता है. यू विल बी गिवन अ टॉपिक, यू नीड टू स्पीक ऑन दैट. योर एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स जो आपने किए होंगे, जो इंटरव्यू में आपको एक्चुअली अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट भी करने होंगे, और इंटरव्यू में उन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे. एंड ऑफ कोर्स जेंडर डाइवर्सिटी, दैट मीन्स अगेन फीमेल्स आर गोइंग टू हैव एन एज ओवर हियर. सो दिस इज अगेन वन प्रोग्राम जो डेफिनेटली कंसिडरेबल है. कमिंग टू IPMAT Rohtak, which has their own paper. Okay, so IPMAT Rohtak जो होगा वो सिर्फ IIM Rohtak के IPM प्रोग्राम के लिए. इनटेक 180 लास्ट ईयर, आई थिंक ये रिड्यूस हो गया है 165 तक लास्ट ईयर. इट हैज बीन रिड्यूस्ड. सो इसका अपना अलग एग्जाम है. अभी तक डेट नहीं आई है, बट मोस्ट लाइकली इट्स गोइंग टू हैपन इन मे. फाइनल सिलेक्शन इनका बहुत पास्ट एकेडमिक्स पे वेटेज रहता है. 45% आपके आईपीमैट स्कोर को वेटेज है, 15% पर्सनल इंटरव्यू पे है, एंड 20 on 10th and 20 on 12th. तो ये सब वो कंसिडर करके अपना फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करते हैं. एग्जाम स्ट्रक्चर, आई एम श्योर द किड्स मस्ट बी अवेयर. इफ यू लुक एट द कट ऑफ, देयर आर लाइक 120 questions, 4 marker each. Total paper is of 480 marks, and if you look at the cutoff, it has been kind of alternating. 2022 में 306 है, 2023 में 409 है, 2024 में फिर से 301 है. तो ये सब डिपेंड करेगा पेपर का लेवल कैसा है. इफ पेपर इज इजी, the cutoff is going to shoot up. If the paper is on the moderate to difficult side, of course the cutoff is going to come down.
Okay, these are the campuses of IIM Jammu and IIM Bodh Gaya. Though these two IIMs have recently shifted into their new campuses, and this campuses are sprawling 110, 120 acre कैंपस है ये, क्योंकि जम्मू एंड बोध गया को लेके मैंने सुना है कई बार कंसर्न आता है कि वी नॉट गो टू वो प्लेस या ऐसा कुछ इशू रहता है. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज प्रोग्राम्स आर कंप्लीटली रेसिडेंशियल. यू आर गोइंग टू बी इनसाइड दिस कैंपसेस. आपको बहुत ज्यादा बाहर जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, और एक कैंपस अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है. फ्रॉम द grocery shop to the medical shop to the hospital to the parlor to everything that you can think of, to the world class sports facilities. Plus IPM is a very rigorous course. Okay, so it's not that classes khatam hui and then you're free. You will have to prepare a lot for next days के projects, assignments. You will be a part of multiple committees जहाँ पे आप काम करेंगे अपने classes के बाद. So technically this program doesn't leave you much time कि आप daily city exploration में जाएं. So कई बार लोग सोचते हैं कि बोध गया छोटा शहर है, but you need to understand at the end of the day this is an IIM. Okay, and IIM as are a brand in India, and if you can get inside one of those campuses, you're going to get being taught by the world class faculties over there, with the world class facilities and infrastructure over the campus, and your peer group is also going to be really good in terms of intellectual capital. So you need to keep those things in mind. For IIM Jammu and Bodh Gaya, we know the exam that needs to be written is JIPMAT conducted by NTA. 100 questions, again 4 marks, so total 400 का ये है, negative marking है. Quantitative aptitude, logical reasoning and verbal ability. दोनों जम्मू और बोध गया में 120 सीट्स ईच है. IIM जम्मू का फाइनल सिलेक्शन 95% वेटेज जिपमैट को है. जेंडर डाइवर्सिटी 5% है. IIM बोध गया का 100% जिपमैट को है. Now this year what happened, IIM जम्मू में because of this gender diversity clause, roughly around उनका 90 to 95% batch is girls. So this year what have they've done, they've said out of, and they were being criticized for this on some of the forums, that out of the total of 140 seats, 94 are going to be gender neutral. ठीक है, तो जो जेंडर डाइवर्सिटी का क्लॉज है वो 94 सीट्स पे एप्लीकेबल नहीं होगा. ओके, रिमेनिंग पे होगा. और यदि ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट यदि लड़कियां आ रही है मेरिट में, तो बाकी 46 सीट्स को भी जेंडर न्यूट्रल ही कंसिडर किया जाएगा. IIM जम्मू एंड बोध गया के कट ऑफ से मिनिमम कट ऑफ से, दीज आर नॉट एग्जैक्ट कट ऑफ. ठीक है, so I'll share this table. I'll share the recording, and so you can actually go through this. And yes, if I talk about here, if I come back here, this paper is of 400 marks. यदि आपको जम्मू और बोध गया के फर्स्ट लिस्ट में आना है, आपको एटलीस्ट 340 प्लस स्कोर करना होगा. अच्छा, इस पेपर के जो ड्यूरेशन है ये 2.5 घंटे का पेपर है. 100 क्वेश्चन 2.5 घंटे. पेपर इजी होता है, एंड क्योंकि टाइम ज्यादा है तभी ये ऐसा पेपर है जिसको आप पूरा सॉल्व कर पाओगे. और तभी यदि आप 340 तभी ला पाओगे जब आप एक्चुअली 95 के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो विद अ वेरी गुड एक्यूरेसी. यदि आप 80 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप 80 इंटू 4 320 एंड गलत होते हैं, सब काइंड ऑफ कंटेंशन से बाहर हो. So keep that in mind कि this is a paper where speed matters with accuracy. Okay, let me just. Okay, so there are a couple of some new more programs from some of the IIMs. There are 5 IIMs which have a full-fledged IPM program. IIM Sirmaur, which is Sirmaur is Himachal ka IIM. Like every state has one IIM. Okay, the way we have IIM Raipur in Chhattisgarh. So IIM Sirmaur has started a 4-year Bachelor in Management Studies program, and इन्होंने last year almost August में जाके ये announce किया था कि we're going to launch this program. So इसके एडमिशन तब उस समय काफी जल्दी हुए थे. दे फिल्ड आउट अ गूगल फॉर्म एंड देन उसके बेसिस पे इंटरव्यू हुए थे. नेक्स्ट ईयर अपना जो 25 to 29 का बैच है, दिस इज अ 4-year प्रोग्राम. 25 to 29 प्रोग्राम के लिए they've kind of made clear कि
सिलेक्शन किस तरीके से करेंगे। तो उन्होंने कहा है कि देयर गोइंग टू बी एन एंट्रेंस टेस्ट जिसका वेटेज 55% होगा, मतलब 100 में से 55 मार्क्स का वेटेज एंट्रेंस टेस्ट को होगा। उसमें भी 25% वेटेज वर्बल का है, 20% क्वांट का है। पीआई का 30% वेटेज है। एकेडमिक परफॉर्मेंस का 10 है। अगेन दे हैव स्पेसिफाइड कि आपके 95% से ऊपर है तो 5 मार्क्स है। सो अगेन 10th का भी है, 12th का भी है। तो 10 मार्क्स में से 5 मार्क्स आपके 10th बोर्ड से आएंगे, 5 मार्क्स आपके 12th बोर्ड से आएंगे। जेंडर डाइवर्सिटी के 5 पॉइंट है। अच्छा, इसमें this is not a 3-year program, this is a complete 4-year program, so there is no kind of exit after 3 year. इनका जो 6 semester है, so this is 4 years 8 semesters. The 6th semester is industry internship या international exchange program. So they have already made it clear that we are going to have some really good स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। सो जो इनका 6 सेमेस्टर रहेगा वो ऑन कैंपस नहीं रहेगा, तो या तो आप इंडस्ट्री में जाके पूरे 6 महीने की इंटर्नशिप करेंगे या आप किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जाके अपने एक्सचेंज प्रोग्राम में अपना एक सेमेस्टर कंप्लीटली बाहर आप पढ़ कर आओगे। ठीक है, so this is again I think a good program to be considered in terms of the learning opportunities. Then IIM Bangalore, again last year they started off an online program. This is an online program, which is BBA in Digital Business and Entrepreneurship. It's called BBA DBE. This is a 3-year degree offered in an online mode, which can be completed maximum within 6 years, 6 academic years. Multiple exit options है। 1 साल के बाद आप निकलोगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल के बाद निकलोगे तो डिप्लोमा मिलेगा और 3 साल कंप्लीट करोगे तो डिग्री मिलेगी। ये ऑनलाइन डिलीवर होगा, बट इसके जो एग्जाम्स है वो ऑनलाइन नहीं होंगे। इसके ऑल अक्रॉस द कंट्री देयर आर गोइंग टू बी सम स्पेसिफिक सेंटर्स जहाँ पे आपको एक्चुअली जाके एग्जाम देना पड़ेगा। नाउ आई डोंट नो इफ मेनी ऑफ यू आर अवेयर, एज पर NEP 2020 a kid can pursue simultaneously 2 degrees, one in regular mode and one in online or correspondence mode. So this program can be undertaken as a standalone primary degree or can be pursued along with any other education program. If at all मान लो आप ग्रेजुएशन के लिए बाहर नहीं गए हो, फुल टाइम ग्रेजुएशन के लिए आप यहाँ हो, and if you want to add on a good brand to your name, you can actually consider doing a regular program from here and doing this degree in the online mode. So this program is there, and इसमें जो एडमिशन है that is again based on an entrance exam which tests 4 different areas: quantitative aptitude and data interpretation, verbal ability and reading comprehension, logical and analytical reasoning, and GK. This is a 90 minutes का test with a total of 60 questions. और इसमें जो number of seats हैं, in the first year they had 1000 seats. So these are 2 different kind of programs coming from IIM Sirmaur and IIM Bangalore, apart from the conventional IPM program that we already have at 5 of the IIMs right now. Moving forward, okay, I'll just come back to this later. I think this was my last slide. यहाँ आ गया, okay. Now, another big segment or big exam which offers a lot of seats, a variety of courses out here, is Symbiosis entrance test. Now, Symbiosis entrance test, you can see by this one single test. ये सिंगल टेस्ट इन सारे कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे जो कैपिटल में लिखा है ये कॉलेजेस हैं। यदि आपको ये BBA करना है किसी भी सिम्बियोसिस कैंपस से तो एप्लीकेबल है। यदि आपको BSc इकोनॉमिक्स करना है इन सिम्बियोसिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, SSC सिम्बियोसिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, तो ये टेस्ट चाहिए। यदि आप मास कॉम में इंटरेस्ट रखते हैं तो मास कॉम में BA भी है और BBA भी है इन द सिम्बियोसिस स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन विच इज अगेन इन पुणे. If you are inclined towards IT, BCA, which is in SICSR Pune. If you are interested in data sciences, then Symbiosis Statistical Institute Pune
में BSc अप्लाइड स्टैटिक्स एंड डेटा साइंसेस है। IT में आपका इंटरेस्ट है तो BBA IT SICSR पुणे में ऑफर किया जाता है। BSc स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइंस, this is Symbiosis School of Sports and Sciences, Pune. So if somebody is really passionate about sports and wants to make their career in sports, no. Liberal arts is again something which is catching up. So again, Symbiosis have a specific school dedicated to that. That is Symbiosis School of Liberal Arts. So they have a BA and BSc program. So इन सारे courses and इन सारे colleges के UG program के लिए आपको SET, which is Symbiosis Entrance Test, ये आपको लिखना पड़ेगा। अब मैं इसमें specifically यदि ये dates already Symbiosis के announced हैं, I hope most of you have already taken cognizance of that, कि last date to apply is 12 April। ये एग्जाम 2 डिफरेंट दिन होता है, एक 5 मई को होगा, एक 11 मई को होगा, एंड दे गिव यू बेनिफिट कि आप इसको दोनों डेज पे दे सकते हैं एंड आपका बेस्ट स्कोर कंसिडर किया जाएगा। ओके, सेट का टाइम सुबह 9 से 10 बजे, ये 1 घंटे का ही पेपर है। रिजल्ट 22 मई को आ जाएगा और उसके बाद ये रिटन एग्जाम का रिजल्ट है। इसके बाद फिर इंटरव्यूज के लिए आपको स्लॉट बुकिंग करनी होगी, इंटरव्यूज होंगे ऑनलाइन। नाउ स्पेसिफिकली यदि हम BBA की बात करें, हमने देखा ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम हैं। यदि हम BBA की बात करें तो वो सिम्बियोसिस सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज में ऑफर किए जाते हैं। SCMS के खुद 5 कैंपस हैं, पुणे, नोएडा, हैदराबाद, नागपुर एंड बैंगलोर। Selection is based on performance in the written exam. Written ability test is nothing but essay writing and personal interview. हर कैंपस का अपना अलग कट ऑफ है एंड आपको हर एक को सेपरेटली अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे सेट में आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जाम एप्लीकेशन समथिंग डिफरेंट एंड देन so there is one thing that you will apply for the set exam and then you will have to separately apply to whatever course and whatever college you want to get into. So यदि आपने सिर्फ एग्जाम के लिए अप्लाई किया, कॉलेज को अप्लाई नहीं किया, आपका बहुत अच्छा स्कोर भी आ जाए, आपको PI के लिए इनवाइट नहीं किया जाएगा। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है कि आपको एग्जाम के लिए अप्लाई करना है, प्लस फिर जो आपने देखा इसके जस्ट पहले मैंने बहुत सारे कोर्सेज बताए जब सेट एग्जाम के बेसिस पे एडमिशन जिन पे मिल सकता है। तो फिगर आउट योर इंटरेस्ट एरिया एंड आप जिन जिन कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हो, जिन जिन कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए आपको सेपरेटली अप्लाई करना होगा। हर कैंपस का अपना अलग बैट एंड PI प्रोसेस होता है एंड सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम कॉमन है। तो पुणे अपना अलग PI करेगा, नोएडा अपना अलग करेगा, हैदराबाद अपना अलग करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। सो यू नीड टू आई सजेस्ट सिंस इस एग्जाम में अभी टाइम है, आई से कि रिसर्च वर्क करो थोड़ा सा। BBA के अलावा भी मास कॉम में यदि आपका इंटरेस्ट है प्लीज गो टू दी SCMS का SCMC का वेबसाइट, go through the entire program curriculum, see if it's exciting to you, then you can have an additional program to apply to. थोड़ा रिसर्च वर्क करो एंड क्योंकि एक एग्जाम के बेसिस पे आप इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग यदि हम टोटल करेंगे तो अराउंड 12-13 डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए आप एप्लीकेबल हो जाते हो। These are the seats for BBA. ये intake for the BBA seats है for all the 5 different SCMS campus. Okay. जो फाइनल सिलेक्शन है वो उसमें रिटन एग्जाम को 70% वेटेज है, NPI को 30% वेटेज है। आप जितना अच्छा रिटर्न में स्कोर करोगे उतना आप PI पे से आप प्रेशर आपका कम होगा। If you know you have done really well in the written exam that is set. Okay. These are the fees for all the five various campuses of Symbiosis Pune. Okay. These are per year. Okay. Entrance exam pattern. This paper is a lot about speed.
So 60 questions, 60 minutes. There's no negative marking, +1 for the correct attempt. And English 16, Quant 16, GK 16 and Reasoning 12. So ये काफी स्पीड गेम है। एक पुणे के लिए यदि आपको जनरल कैटेगरी स्टूडेंट है, कट ऑफ 48 to 50 रहता है, मतलब 45 प्लस तो मान के ही चलिए आपको स्कोर करना है। Now coming to NMIMS. राइट, एक मिनट। अगेन लेट्स से सिम्बायोसिस के मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं, मल्टीपल कैंपस हैं। NMIS यूनिवर्सिटीज के भी मल्टीपल कोर्सेज एंड मल्टीपल कैंपस हैं। एंड देयर आर 7 कैंपसेस NMIMS के इंडिया में इस समय। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो प्योरली ऑन द रिटन टेस्ट है। रिटन टेस्ट आपका निकल गया तो आपको सीधा ऑफर लेटर आ जाएगा। देयर इज नो PI हियर। I forgot to mention, even in Jammu and Bodh Gaya, in IIM Jammu and Bodh Gaya, कोई PI नहीं है। यदि आपने रिटर्न निकाल लिया तो आपको सीधा एडमिशन ऑफर आएगा। Okay. So this only one stage. Now, these are the various programs that are being offered. If you want, you can save this table, or any which ways I'm going to share the recording of this session. So as you can see, BBA is being offered at all the campuses. And if it talk about कौन से campuses worth हैं, तो probably Mumbai, Navi Mumbai, Bangalore and Hyderabad. If we are going out from Raipur, and I think these are the 4 campuses that one should consider. Rest would be like more of a localized kind of a crowd ज़्यादा होगा. And Mumbai main campus has 600 seats for BBA. Then the other programs that are being offered by NMIMS are BSc in Finance, BCom Honors, BSc Economics, Liberal Arts, then it's BBA in Branding and Advertising, BBA in International Business, and this is Bachelor's of Business Management and Marketing. NMIMS मुंबई में BBA के लिए क्लास 12th में मैथ्स होना जरूरी है। These are the fees for various NM and the campuses and the programs. Okay. So ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सो यदि आप BBA, BCom या BSc इकोनॉमिक्स या BSc फिनांस जैसे प्रोग्राम सोच रहे हैं तो आपके पास क्लास 12 में मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए, उसके बिना आप एलिजिबल नहीं है। कन्वेंशनली एनपैट का अभी तक आ जाता था, अभी तक एनपैट के नोटिफिकेशन आ जाते थे, बट इस बार अभी तक एनपैट का नोटिफिकेशन आया नहीं है। स्टिल कोई अपडेट है नहीं इस पे। Entrance exam is 120 questions in 100 minutes, logical reasoning, quants and verbal reasoning. Okay, so no negative marking, +1 for every correct option. Then we have Christ University, which is again a very established name in the undergrad segment. They offer a lot of courses in the undergrad segment. यहाँ पे if you'll see, I have only listed अभी इनके BBA के variations क्या हैं. So there is a conventional BBA honors and honors with research, and I hope most of you are aware that post NAP यदि आपको honors with research चाहिए तो आपका UG डिग्री का जो duration है वो 4 years हो जाता है. So then they have BBA strategy and business analytics, and again सब में option है honors या honors with research. So 3 साल तक पढ़ना है या 4 साल तक पढ़ना है, that's your choice. Then BBA Finance and Economics, BBA Tourism and Travel Management, BBA Finance and Marketing Analytics, BBA Finance and Economics, BBA Finance and International Business, BBA FinTech, BBA Business Analytics. These are the various multiple programs, and we are only looking at the management segment right now. Okay. Now, as far as entrance process is concerned, Christ has released the dates for this year. So there'll be 2 rounds here.
एंड क्राइस्ट में ऐसा नहीं होता कि आपने एक राउंड में पार्ट लिया तो आप नेक्स्ट राउंड में पार्ट नहीं ले सकते, यू कैन डू दैट। हाँ, ये वो बेस्ट ऑफ वाला कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। एक राउंड मतलब आप रिटन एग्जाम देंगे, उसका इंटरव्यू प्रोसेस भी हो जाएगा, उसका रिजल्ट भी आ जाएगा, दैट इज वन राउंड। देन अनदर फिर से एंट्रेंस प्रोसेस होगा, उसका इंटरव्यू होगा, दैट इज राउंड 2। अनलाइक सिम्बी जहाँ पे आपको दो बार दो मतलब विद इन अ वीक 2 बार रिटर्न लिखने का मौका मिलता है, एंड देन यू कैन चूज द बेस्ट ऑफ देम। ओके, यहाँ पे पूरा एक राउंड खत्म होने के बाद ही नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होता है। तो जो फर्स्ट इनका राउंड है उसका रिटन एग्जाम है 6 अप्रैल को, जिसके लिए आपको 27 मार्क्स तक अप्लाई करना होगा। ये एंट्रेंस टेस्ट, यदि मैं अपने रायपुर की बात करूं तो ये रायपुर में इसका सेंटर होता है। सो यू विल बी राइटिंग द रिटन एग्जाम हियर। देन 11 टू 15 अप्रैल के बीच इनका सेकेंड राउंड होता है। ना सेकेंड राउंड में क्या है, ऐसे सब्जेक्टिव असेसमेंट, दैट मीन्स आपका ऐसे राइटिंग। MP is micro presentation, that is your extempore. PI is personal interview, so that's one-on-one interaction with the one of the panel. ये आपको, इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ट्रैवल करना पड़ेगा। These are the centers they've already mentioned. And again, if I talk from the perspective of Raipur, Bhopal and Visakhapatnam are the two nearest location जो आप one night के टाइम डिफरेंस पे ट्रैवल करके कर सकते हैं। 11 से 15 में क्या डेट आपको मिलेगी वो आपके एडमिट कार्ड पे होगी, एंड अकॉर्डिंगली आपको अपना ट्रैवल प्लान करने होंगे। सेकेंड राउंड, इसका सेकेंड जो एंट्रेंस है वो 9th में है, जिसके जो इंटरव्यू है वो 15 से 18 मई तक होंगे। अगेन सेम प्रोसेस एंड सेम आपके वेन्यूज हैं। तो दीज आर सेम। अच्छा, हर एक प्रोग्राम के लिए आपका अलग एप्लीकेशन प्रोसेस है। यदि आप अब क्राइस्ट में लेट मी जस्ट गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट ऑल अंडरग्रेड प्रोग्राम्स क्राइस्ट ऑफर्स। सो यदि आपका इंक्लिनेशन कल को ऐसा लगता है BBA के अलावा मेरे को इकोनॉमिक्स में कुछ करना है या कुछ और भी मेरे को एज एन ऑप्शन रखना है, तो ये इन्होंने एक पूरा एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न दिया हुआ है। BA के जितने प्रोग्राम है उनमें इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स एंड रीजनिंग आता है। ये BSc प्रोग्राम है, ठीक है। इनमें आप देखोगे अलग से जो आ रहा है वो इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस है, ठीक है। देन वी हैव दिस बीकॉम के एंट्रेंस एग्जाम में फंडामेंटल अकाउंटिंग एडिशनल ऐड हो रही है 20 मार्क्स की। टेस्ट इंग्लिश, GK, रीजनिंग, मैथ्स एंड डेटा इंटरप्रेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है। BBA के जितने प्रोग्राम्स हैं, यहाँ पे जितने BBA के वेरिएशंस हैं उनमें इंग्लिश, GK, रीजनिंग, मैथ्स ये सेम है। यहाँ पे फंडामेंटल अकाउंटिंग 10 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये पैटर्न्स इन्होंने वेबसाइट पे दिए हुए हैं एंट्रेंस एग्जाम के। आई ऑल्सो हैव द PDF, आई शेयर इन द ग्रुप। Okay, yeah, I think I just forgot to mention about the campuses that they have. Now, Christ University के within Bangalore, they have 4 campuses. The most कह लीजिए सबसे जो पुराना है और जो नोन है वो है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल कैंपस। Then they have Banerghatta, that's a locality in Bangalore. Then we have Kengri में मोस्टली इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं, एंड दे हैव यशवंतपुर। कौन सा प्रोग्राम कहाँ ऑफर होता है, आई हैव दोस PDFs, आई अगेन शेयर विद यू इन द ग्रुप, सो प्लीज आप देख सकते हैं। BBA जनरल चाहिए या कॉमन BBA चाहिए तो कौन कौन से किस कैंपस में है। अपार्ट फ्रॉम दिस, Christ also have a campus in NCR, that's Delhi, and it's specifically in Ghaziabad. And then they call it like Christ Pune, but it's not exactly Pune. Christ Pune is situated at Lavasa, which is a man-made city near Pune. So in all, Christ has 6 campuses, and depending what course you want to do, you will have to choose कि मेरे को यदि BBA भी अप्लाई करना है तो सेंट्रल कैंपस का अलग अप्लाई करना होगा, यशवंतपुर का अलग अप्लाई करना होगा, NCR का अलग अप्लाई करना होगा।
ठीक है। हाँ, यदि एंट्रेंस एग्जाम क्लैश करेंगे तो आपको ऐसा नहीं है कि कई बार ये पजल्ड हो जाते हैं बच्चे कि मेरा इसका एग्जाम अलग है, इसका अलग होगा। यदि एंट्रेंस एग्जाम का डेट एंड टाइम सेम है तो आपको एक ही लिखना है और वो स्कोर बाकी सारे प्रोग्राम्स में शेयर कर दिया जाएगा। हाँ, इंटरव्यू प्रोसेस डिफरेंट हो सकते हैं। मैम I've already covered IIMS earlier. I'll share this presentation and I'll share the recording as well. I started with those only. I'll again show you the presentation in the end. If there's anything you have any questions, you can please put up towards the end. Then we have CUET. CUET, I'm sure you all know about that. It has gone very big in the last 3 years. Now more than 250 यूनिवर्सिटीज इसका स्कोर लेते हैं एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में यदि हम स्पेसिफिकली बीबीए की बात करें तो अंडर ग्रेड में शहीद सुखदेव सिंह भगत कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, जब तक आईपीएम प्रोग्राम नहीं था, दिस वाज द मोस्ट प्रोबेबली सबसे अच्छा बीबीए प्रोग्राम था इंडिया में। एंड आईपीएम्स आने के बाद ऑफ कोर्स आईपीएम्स हैव टेकन इन अ लीड ओवर दिस प्रोग्राम। सो यदि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुझे बीबीए में एडमिशन लेना है, जो भी अंडर ग्रेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है, तो मुझे सीयूईटी का स्कोर चाहिए। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में यदि आपको यहाँ पे जो कोर्सेज ऑफर्ड है वो है बीएमएस, विच इज अनदर नेम फॉर बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का ये बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज का, इट्स वन एंड द सेम थिंग। बीबीई is Bachelor of Business Economics. BBA FIA is Bachelor's in Financial and Investment Analysis. इन सब कोर्सेज के लिए पहले तो ये मैंडेटरी कंडीशन है दैट यू शुड हैव मैथमेटिक्स. इट कुड बी कोर, इट कुड बी अप्लाइड as one of your subjects in class 12. If you don't have this, then आपका DU का मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के लिए आप एप्लीकेबल नहीं है. These are the various intakes. BMS की 659 सीट्स हैं, BBE की 510 है एंड BBA FIA की 150 है. फी वाइज DU काफी कम है. The fees are very minuscule to the tune of, as you can see, 30,000 per annum तक आएंगी. Rest is your lodging and boarding का expenses. CVT के फॉर्म्स अभी अनाउंस नहीं हुए हैं. मिड फरवरी आर व्हेन फॉर्म्स आउट होते हैं एंड टेंटेटिवली ये डेडलाइन मतलब टाइमलाइन रहता है 15 मई से 31 मई. पिछले 2 साल से इसी टाइम के बीच सीयूईटी हो रहा है. ओके, सो यदि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएमएस या इन सब कोर्सेज में एडमिशन चाहिए, लैंग्वेज का स्कोर चाहिए विच इज नथिंग, आपका इंग्लिश का स्कोर होगा. देन आपको मैथ्स का पेपर देना होगा अपने डोमेन सब्जेक्ट में से एंड आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा. ये 3 सेक्शन का स्कोर जो है सीयूईटी दिल्ली यूनिवर्सिटी कंसिडर करेगा फ्रॉम द सीयूईटी एग्जाम फॉर एडमिशन टू दीज प्रोग्राम्स. सीयूईटी में थोड़े चेंजेस हैं इस साल. लाइक लास्ट ईयर तक ये होता था कि यदि किसी सेक्शन के 50 क्वेश्चंस हैं तो 10 ऑप्शनल होते थे, मतलब 10 क्वेश्चंस छोड़ के आपको सिर्फ 40 करने होते थे. पर इस साल से क्या उन्होंने ये किया है कि हर डोमेन सब्जेक्ट एवरी सब्जेक्ट वुड इज गोइंग टू हैव स्टैंडर्ड 60 क्वेश्चन एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल. सो देयर इज नो प्रोविजन ऑफ लीविंग एनी क्वेश्चंस. So CUET is still an evolving exam. Her साल you can see some of the other new changes that are being incorporated in this particular exam. Now NMIMS is different from the same group. We have Narsi Monji College of Commerce and Economics. सेम ग्रुप का कॉलेज है, ठीक है, बट इसके लिए एनपैट नहीं होता है. इसके लिए लास्ट ईयर तक तो सीयूईटी ही था. लास्ट ईयर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक नया एग्जाम इंट्रोड्यूस किया विच इज MHCT BBA. एंड मुंबई यूनिवर्सिटी पूरी तरह से सीयूईटी के अंदर नहीं है. इनफैक्ट सीयूईटी के अंदर नहीं है. ज्यादातर कॉलेज अपने एंट्रेंस एग्जाम करते हैं या MHCT BBA के अब स्कोर लेते हैं. जो कोर्सेज यहाँ पे ऑफर किए गए हैं वो है बीकॉम, BMS. मेजर कोर्सेज बीकॉम सेंट्रिक है, ठीक है. तो अभी ये सीयूईटी वाली चीज तो वैलिड नहीं है इस पे. अभी MHCT का नोटिफिकेशन आना है BBA का.
इसी तरह मीठी बाई, again if you look at the range of courses that Meethi Bai offers, so they have a lot of various courses to offer on the undergrad level. In the mass comm also, in BCom, BMS is nothing but BBA only. So काफी सारे कोर्सेज यहाँ पे भी हैं, लेकिन यहाँ से काफी बच्चे जाते हैं जो मीठी बाई में, जिनको बॉम्बे रहना है, बॉम्बे में पर्टिकुलरली एक्सप्लोर करना चाहते हैं कॉलेजेस. सो मीठी बाई हैपेंस टू बी वन गुड ऑप्शन आउट देयर. सो अगेन अभी MHCT BBA का कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है. अगेन बॉम्बे में है जय हिंद कॉलेज. जय हिंद का अगेन अपना खुद का एंट्रेंस होता है. ये ना CUET का स्कोर लेते हैं, ना ही ये MHCT BBA के साथ अलाइन कर रहे हैं. They have their own entrance exam, and they have a lot of programs on the management side, like Bachelor's of Banking and Insurance, Bachelor's of Financial Market, Bachelor's of BMS course, and then BBA course, and which is in tie-up with TCS. So that's something exciting that you can look forward to. इवन जो क्राइस्ट का डिसीजन साइंसेस का जो BBA है, वो भी उनका एक कंपनी के साथ टाइप में है, और उसमें 2 राउंड ऑफ इंटरव्यू होते हैं. सो वो भी काफी मतलब प्लेसमेंट ड्रिवन प्रोग्राम है. सो दे हैव देयर ओन एग्जाम एज आई सेड, जो कि मई एंड जून फर्स्ट वीक में जाके लास्ट ईयर हुआ था. जो फाइनल एडमिशन ये करते हैं वो क्लास 12 के मार्क्स एंड जो ये अपना एंट्रेंस कंडक्ट करते हैं, हाफ लाइक 50-50% वेटेज ये दोनों को देते हैं. ये नंबर ऑफ सीट्स है जय हिंद में. वेरियस कोर्सेज की. ये इनका एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न है जय हिंद का. वो सेम कोर्स है जो आप किसी भी नॉर्मल एग्जाम के लिए पढ़ेंगे, वही यहाँ पे भी पूछा जा रहा है. इंग्लिश, लॉजिक, रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिक्स एंड करंट अफेयर्स. महाराष्ट्र सिटी BBA का अभी टेंटेटिव डेट अनाउंस्ड है 1st, 2nd, 3rd April. I was just cross-checking that. बट लास्ट ईयर का यदि हम डेटा देखें तो वो डेफर होता है. ये एग्जाम लास्ट से जाके बिल्कुल मई एंड में 30th मई को जाके एक्चुअली हुआ था. सेंट जेवियर्स मुंबई, अगेन अ वेरी नोन कॉलेज फॉर BMS. They have their own separate entrance exam, which is XET. Seats 120. फाइनल मेरिट एंट्रेंस के स्कोर को 60% एंड क्लास 12 को 40%. ये सब एग्जाम्स मई जून में जाके आएंगे. IB यूनिवर्सिटी, अगेन इट्स अ यूनिवर्सिटी इन दिल्ली विच इज इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी. यहाँ पे भी आप देख सकते हो काफी सारी सीट्स है BBA के लिए. 7895 पे मतलब दिल्ली में रह रहे हैं. Then Bachelor's of Business Administration, Banking and Insurance, and then BBA Computer Aided Management. Not all colleges good. यदि आप रायपुर से उठ के वहां जा रहे हैं तो these are the couple of colleges that you can keep in your consideration. IB यूनिवर्सिटी का अपना अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है for the BBA programs. Structure, exam structure is same things: English, Maths, Reasoning, and General Awareness. Okay, coming to the critical thing, why IPMAT Indore is such a popular thing, why there's so much of people looking forward for that, because IIM Indore is one of the top 6 IIMs in India. And आपका जो IPM प्रोग्राम है उसमें आप 4th ईयर से
जो बच्चे कैट दे के वहां पे एमबीए करने आते हैं, आप उन्हीं के साथ मर्ज हो जाते हैं। सो इट्स नॉट कि फोर्थ आईपीएम प्रोग्राम पूरा सेपरेटली चलता है, फोर्थ ईयर से वो सेम बैच में आ जाते हैं। आईएम इंदौर का आप देखेंगे, हायर सैलरी का तो हम यदि अपार्ट रखते हैं, क्योंकि हायर सैलरी में कई कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि वर्क एक्स वाले स्टूडेंट्स भी होते हैं। यदि हम एवरेज सैलरी ही देखते हैं एज ऑन डेट, आज की डेट में आई एम इंदौर का एवरेज पैकेज जो है वो 30 lakhs के अराउंड है। So that is what makes this program so coveted and so sought after. Because when I'm writing CAT after finishing my graduation, I'm kind of competing with 3.2 lakh people. इस साल CAT का registration data 3.29 lakh people have registered for CAT, out of which 2.93 lakh actually wrote the paper. And unless I'm getting 99.5 percentile से ऊपर, I am not going to get an interview call from IIM Indore. And rest is the case with other IIMs also. IIM रोहतक, रांची, जम्मू, बोध गया, यदि आप कैट दे रहे हो तो शायद 98 परसेंटाइल के नीचे आपको कॉल नहीं आएगा। Whereas यदि हम आईपीमैट इंदौर की बात करें तो अभी भी इसके टेकर्स पैन इंडिया 23-24,000 से ऊपर नहीं। So if you plan this very strategically, if you prepare well, it is easier to get inside any of these IIMs right now after your class 12 rather than यदि आप ग्रेजुएशन फिनिश करके एंटर करने की सोचते हैं, तभी भी आपके पास टाइम है। एंड यदि आप नीचे देखेंगे, शहीद सुखदेव सिंह भगत जो कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, 3 ईयर का नॉर्मल बीबी है। लुक एट द एवरेज पैकेज 11.12 lakhs, सिम्बियोसिस स्टार्टिंग 6.8 lakhs, एंड दिस इज आफ्टर 3 साल के ग्रेजुएशन में। ठीक है, yes, I think this is all the information that I wanted to share. If there's any question that anybody wants to put in, so I'm here.